Chaliye, welcome in this class. So today's topic is stoichiometry. Stoichiometry. So you must pronounce the word properly. It is stoichiometry. So it has been derived from the Greek word. From Greek word stoichion. Stoichion means element. Metron means measure. So in nutshell we can say that measurement of an element. So आपको पता है कि we have a chemical equation. Actually chemical equation होता है एक statement होता है ये of a chemical reaction in terms of symbols and formulae of the species involved in that chemical reaction. This is a chemical equation. Methane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. That is, it is combustion of methane. So this is the statement of that reaction. Combustion reaction का statement है in terms of symbols and formulae. Now we will balance this equation. इसको हम balance करते हैं. So this is a balanced chemical equation. यही equation जो है ये balanced है. So this balanced chemical equation actually gives us quantitative relationship between the reactants and the products. And it gives the relationship between in terms of quantity. What is the quantity of the reactants involved and what is the quantity of the products formed. So this is called quantitative relationship. So this quantitative information can be used to perform different calculations. These the branch which deals with these type of calculations is stoichiometry. And actually we can say that so stoichiometry deals with the calculations of the masses of the reactants or the products. That means mass of the reactants required and mass of the products formed. So how can we perform such calculations? So to perform such calculations we need some steps. We have to keep in mind some steps first so that we can perform such type of calculation. And we can find the mass of a reactant required or mass of a product produced. First of all, what do we have to do? First of all, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैं लिखूंगा यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास. पहला स्टेप है सबसे पहले आप लिखो. मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दिया. ये सबसे पहले आप लिखो केमिकल रिएक्शन. आप लिखो पहले केमिकल रिएक्शन में लिखती. The first of all, write the chemical reaction of the reactants and the products involved. After that, balance that reaction. उसको balance कर दीजिए. हो गया second step. So first write the chemical reaction, then balance that. उसको balance कर दीजिए. तीसरा step जो very important step है, आपको किस reactant का निकालना है मास या किस प्रोडक्ट का मास निकालना है. जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे कैलकुलेशंस में उनके आप लिखो नंबर ऑफ मोल्स या लिखो उनके नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन. वो आपको बिलो द फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. So I will quote here. For example, हमारे पास यहाँ पर मीथेन है हमारे पास. So यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है stoichiometric कोफिशिएंट इसका 1 है. So that means it is 1 mole is involved. 1 mole. यहाँ पर 2 times ऑक्सीजन है. इसका मतलब इसके 2 मोल्स इन्वॉल्वड है. 2 मोल. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है. इसका 1 मोल है. इसका मतलब है यहाँ पर 1 मोल इन्वॉल्व है कार्बन का. सो यहाँ पर वाटर होता है प्रोड्यूस. इसका मतलब है 2 टाइम्स हो गया 2 मोल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वाटर. यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल इसका कितना बनता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास.
वो बनेगा 16 ग्राम, ये होगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर इसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखिए ऑक्सीजन का, दैट इज 32 ग्राम। अब ये 2 टाइम्स 32 ग्राम ऐसे लिख देंगे। कार्बन का 1 मोल होता है बराबर 44 ग्राम। इस तरह वाटर का 2 मोल्स यहां पर हो गए, 2 इंटू 1 मोल का होता है 18 ग्राम। लिख दिया हमने ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लिखेंगे बिलो द फॉर्मूला ऑफ ईच, हमने लिख दिया ये। कभी आपको जरूरत पड़ती है मोलर वॉल्यूम लिखने की भी, कभी नीड पड़ेगी मोलर लिटर्स में आपको लिखनी पड़ेगी किसी गैस का वगैरह, तो यहां पर हम सिर्फ इस वक्त करेंगे टच मास का। फॉर एग्जांपल नाउ हाउ टू कैलकुलेट, इससे आपको थोड़ा वो बहुत समझ आएगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉब्लम एक है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मास ऑफ, ये आपके पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड on combustion of 8 grams of methane। so एक रिएक्शन है ये, I will repeat it। so आपके पास एक प्रॉब्लम है, what is the mass of water produced on combustion ऑफ 8। अगर हम 8 ग्राम मीथेन के जलाएंगे उनको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कितना वाटर का मास हमें मिलेगा, हमें कितना वाटर मिलेगा वहां से इन टर्म्स ऑफ मास, वो आपको निकालना है। सो इसका ये मतलब है फ्रॉम रिएक्टेंट यहाँ पर गिवन है, आपको रिएक्टेंट के मास से आपको प्रोडक्ट का मास निकालना है। फ्रॉम द मास ऑफ मीथेन यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। सो आप कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रिएक्शन, हम लिखेंगे रिएक्शन इसका, हमने इसका रिएक्शन ऐसे लिख दिया, ये सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे लिखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन इसका, यहां पर मीथेन इन्वॉल्व है और उसको हम करते हैं कंबस्ट, उसको कंबशन रिएक्शन है, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं बर्न। सो आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, पहला स्टेप आपने यू हैव रिटन द रिएक्शन। उसके बाद हम इसको बैलेंस कर देंगे। सो हमने इसको यहां पर बैलेंस कर दिया है, दोबारा मैं नहीं लिखूंगा यहां पर। CH4 2 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स वाटर, हो गया। दूसरा स्टेप हमने बैलेंस कर दिया। तीसरा स्टेप जो था इसका, हमने हर एक जो हमें यहां पर हमें 2 चाहिए, एक तो हमें मीथेन चाहिए, यहां पर मीथेन का हमें मास चाहिए इन्वॉल्व जो कैलकुलेशंस में है, मीथेन और वाटर ये यहां पर इन्वॉल्व है। बाकी हमें इनका नहीं चाहिए, इनको हम यहां पर रब कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। यानी हमारी कैलकुलेशन में सिर्फ 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है, एक है मीथेन, दूसरा है वाटर। सो फ्रॉम द गिवन मास ऑफ मीथेन वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। सो कैसे करेंगे? सो यहां पर हम लिखेंगे 16 ग्राम्स ऑफ, यहां पर देखो अब 16 ग्राम्स ऑफ, रिएक्शन से पढ़िए, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन on combustion produce water। कितना वाटर करता है प्रोड्यूस? 16 ग्राम्स करता है वाटर प्रोड्यूस, 2 इंटू 18 ग्राम्स, 2 इंटू 18 ग्राम्स करता है वाटर प्रोड्यूस। अब 1 ग्राम अगर हम जलाएंगे, 1 ग्राम ऑफ मीथेन on combustion produce water is equal, कितना करेगा 1 ग्राम। सो हो गया 16 ग्राम करता है इतना, 1 ग्राम कितना करेगा? और 1 ग्राम जलाइए, वो होगा 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 16, इतना करेगा 1 ग्राम। अब हमारे पास गिवन जो है हमें 8 ग्राम कितना करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम है, इफ विल बर्न 8 ग्राम्स कितना मीथेन प्रोड्यूस होगा। सो अब ऐसे लिखिए, देयरफॉर 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन ऑन combustion will produce
वाटर, ए का हमें पता है, ए का, सो हमारे पास 8, हम ए का, ए को हम करेंगे जितना ए का प्रोड्यूस करते उसको हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, हो गया 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 8। यहां पर मैं लिखूंगा ये, आई राइट इट हियर, यहां पर मैं लिखूंगा ये इज इक्वल टू, यहां पर मैं यहां से मैं ले लूंगा ये। सो वाटर कितना करता है, हमें 1 ग्राम का दिया है, हो गया 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 8, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 8 से। सो ये हो गया 8 1s 8 2s, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, वी विल गेट 18 ग्राम्स। सो इसका ये मतलब है अगर हम बर्न करेंगे 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन, सो वी विल गेट 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो इस तरह हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। सो यहां पर हमने इस प्रॉब्लम में हमने क्या कर दिया, हमने फ्रॉम द नोन मास ऑफ द रिएक्टेंट, वी हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मड। Inshallah, we will add few more problems to this question in the next lectures, in the coming lectures. Thanks. Okay.